آج باب اور اس کی 18 لکھا ہے، جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپیہ لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس سے بھر جائے۔ وہ روح القدس سے، یہ جادوگر کہہ رہا ہے، روپیہ لایا، پیسہ لایا ہے، شاگردوں کو لالچ دے رہا ہے۔ پطرس کو جو روح القدس سے بھر گیا ہے، جو یسوع کا شاگرد ہے، جس کے اندر روح القدس ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے بھی یہ کیا دے دو، برکت دے دو۔ لکھا ہے آگے، رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپیہ لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس سے کیا ہو جائے، بھر جائے۔ اب سنیے گا، پطرس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ کیا ہوں، غارت ہوں۔ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا کیا کیا جی، خیال کیا۔ خدا کی برکت کبھی روپیوں پیسوں سے نہیں مل سکتی، اور نہ کوئی خدا کی قدرت کو خرید سکتا ہے، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں۔ پطرس رسول نے اس کو کہا تو وہ تیرا پیسہ غارت ہو، تو نے خدا کی توہین کی ہے، تجھے خدا کی قدرت کا پتہ نہیں، تو خدا کی قدرت کے بارے میں جانتا نہیں کہ تو خدا کی قدرت کو پیسوں سے تول رہا ہے، پیسوں سے خریدنا چاہتا ہے، جبکہ خدا کو کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ خدا خود کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے تجھے پیسہ دیا، سب کچھ دیا، تو اسے ہی خریدنا چاہتا ہے۔ پطرس غصے میں آ گیا۔ کس میں آ گیا جی؟ غصے میں آ گیا کہ اس نے کیسی بات کی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو آج بھی میں نے کہا ایسے لوگ ہیں، ساڑھے پیچھے پیچھے بولو، یہ جادو کے دوران ایسی رکھی آپ پہ روح القدس آئے، تیرے کے اندر آئے، یہ خدا جس پر چاہے گا اس پر وہ روح القدس کو نازل کرے گا۔ جو پیاسا ہوگا، جو پیاسا ہوگا، جو سمجھے گا کہ روح القدس کی اہمیت کیا ہے، روح القدس ہے کیا، کیا لکھا ہے؟ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے، تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے اور نہ بخرا، مگر تینوں ککھ نہیں ملے گا، نہ اس جہان میں تینوں حصہ ہے تیرا، اور نہ تیرا تو کیا کرے گا، تو دنیا تو آگے پڑھیں، آگے دیکھیں کیا لکھا ہے جی۔ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں، تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں، تو پیسوں سے خدا کی قدرت کو خریدنا چاہتا ہے، مین خدا کو، روح القدس خدا ہے۔ آگے جی، بس اپنی اس بدی سے تو توبہ کر، اپنی اس بدی سے کیا کر، اس نے کہا تو نے یہ بدی کی ہے، اس سے کیا کر، توبہ کر، اور خداوند سے دعا کر، اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی کیا ہو جائے، کیا ہو جائے۔ پطرس نے اسے ایک اور نصیحت کی کہ توبہ کر، تو نے خدا کے لیے کیسی غلط بات کی ہے، تو نے خدا کی قدرت کو خریدنا چاہا ہے، توبہ کر، نہیں تو ہوگا کیا جی، آگے بڑھ۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو جی پت کی سی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، یس، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ اب اس کو سمجھ آئی ہے پطرس کی بات، کہ ہن کہنا میرے لیے دعا کرو کہ جیڑیاں تو گلاں کہیاں نے ان سے مجھے، ان میں کوئی بھی آفت مجھ پر نہ آئے۔ لیکن پطرس کی بات یہ جادوگر کو سمجھ آئی، لیکن افسوس کہ آج لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن اس نے توبہ کر لی، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، میں نے خدا کے لیے ایسا کہا ہے، خدا کی قدرت کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے کہا میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ اس نے اسی وقت معافی مانگی، اس نے اسی وقت کیا مانگ لی جی، معافی مانگی۔ تو اس لیے
मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि खुदा की कुदरत को हम खरीद नहीं सकते, हम उसके तालिब हो सकते हैं कि खुदावंद तो अपनी कुदरत को हम पर नाज़िल करे, अपने रूह कुदस से हमें भर दे। हम रूह कुदस की मामूली में रहना चाहते हैं, हम तेरी हजूरी में रहना चाहते हैं। तो रूह कुदस से जब हम भर जाएंगे तो रूह कुदस फिर की करेगा, फिर आपको खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करेगा। तो हम दुआ में ठहरे हुए हैं, रोजे में ठहरे हुए हैं कि आप सारी कलीसिया हमारी जो है, जो आज तक रूह कुदस से नहीं मामूल, वो रूह कुदस से मामूल हो जाए। आमीन आमीन। आमीन। शागिर्द कितने सन? 12। कितने थे जी? 12 शागिर्द थे। पूरी दुनिया में उन्होंने हलचल मचा के रखी। वजह क्या थी कि रूह कुदस से मामूर थे। किसे मामूर थे? रूह कुदस से मामूर थे। अजी थोड़े अगर रूह कुदस से मामूर होंगे तो हम भी दुनिया में यीशु के नाम से हलचल मचा देंगे। उससे क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूह कुदस का होना जरूरी है, पाखरू का होना जरूरी है, खुदा की हजूरी का होना जरूरी है। आमीन आमीन। तो इसलिए रूह कुदस कितना अहम हुआ कि नहीं हुआ? सारे 10 मिनट खामोश हैं, बहुत अहम है। तो इसलिए रूह कुदस बहुत जरूरी है। रूह कुदस करता की है? रूह कुदस सुनता भी है और बोलता भी है और साथ काम भी करता है। साथ क्या करता है? वो हमारे साथ साथ हमारा पार्टनर है, वो साथ साथ क्या करता है जी? काम भी करता है। एक और हवाला, जो रूह कुदस की अहमियत को नहीं जानते या रूह कुदस को नहीं समझते, 5 बाब की 3 सीखने के लिए हम सबको और गहरे में जाने की जरूरत है और रूह के मामूली को लेने की जरूरत है। 5:3 ये बड़ा फेमस वाक्य है हननिया और सफीरा का। जब इब्तदाई कलीसिया बन गई थी, जब इब्तदाई कलीसिया बनी, ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ था? इब्तदाई कलीसिया बनी। तो इब्तदाई जब कलीसिया बन गई तो कलाम बताता है कि इतना लोग जो रूह में मामूर थे, उनको लगता था कि मसीह के बगैर कुछ भी हम नहीं। वो अपनी चीजों को, अपने आप को समझते थे हम तो मसीह के ही हैं, मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं। और ये रूह कुदस करता है। ये कौन करता है जी? और वो जो लोग मिल गए थे, वो कहते थे अपने घर जो कुछ है बेच बेच कर देते थे शागिर्दों के कि मसीह का काम करो यार, दुनिया में जाओ, जाके जो कुछ हमारे पास है वो हाजिर है, जाए मसीह की इस खुशखबरी को लेकर दुनिया में फैलाएं। तो लोग बेच बेच कर चीजें देते, घर देते। लेकिन उस वक्त भी ऐसा ही था, जिन्हें खुदा से मोहब्बत होती थी, जो खुदा के काम में हिस्सेदार बनना चाहते थे, वो आज भी ऐसा ही करते हैं और इब्तदाई कलीसिया भी ऐसा ही करती है। तो सब कुछ लिखा है, इसका 5वें बाब से बल्कि हम पढ़ते हैं। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर शागिर्दों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से क्या बोले जी? मैंने क्या बोला था? रूह कुदस सुनता है और बोलता है। लिखा है अभी रूह कुदस से सुना है, जब तक लिखा है कि झूठ बोला और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़ा, क्या जब तक वो तेरे पास की तेरी ना थी? जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही, तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि किससे झूठ बोला जी? खुदा से। तो बात इसमें नहीं थी, अगर बिक गया, अगर कोई जरूरत है तो कहने पतरस पादी साहब ऐ पैसे मेरे को इन्हें थोड़ी मुझे लोड़ पै गई है, फिर जिन्हें है ने रखो। हुआ वहां पता क्या, जो बात सीखने की मैं क्या है, वाकया यह है कि एक तो उन्होंने चाहा कि सबके सामने हमारी एक रेपो बनेगी, इज्जत बनेगी कि ना सब ना ज्यादा हिस्सा नंबर, इसलिए उन्होंने झूठ बोला, उसमें से कुछ रख भी लिया और कहा कि जो कुछ जिन्ने का विकास पूरा आसान लिया कर ताकि लोग जाने बड़े ध्यानदार, बड़े ईमानदार है। इसमें उनकी नीयत की वजह से, किसकी वजह से? नीयत ठीक नहीं थी और झूठ बोल रहे। अगर सच बोल देते
کہ بیکی اتنے کی ہے, ہمیں کچھ ضرورت تھی, اس میں ہم نے رکھ لیا ہے. پطرس خدا کے خادم, خدا کے بندے ہیں, اتنا کچھ ہے ہمارے پاس. یہ ایکچولی انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے کیا بولا؟ اور جھوٹ بول رہے ہیں کس سے؟ خدا سے. پطرس نے کہا میرے سے نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن تم نے یہ خدا سے جھوٹ بولا. تو جب خدا نے جھوٹ بولے اور روح القدس سے جھوٹ بولا تو ہوا کیا؟ اس کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ تو نے خدا سے جھوٹ بولا. یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا. حنانیہ کیا ہوا جی؟ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا, مر گیا, اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. جب وہ مر گیا ڈگ پیا تو سارے نے خوف ہو یہ کیا, کیونکہ روح القدس کی قدرت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اس واسطے ہمیشہ روح القدس کی حضوری میں جب ہم آئیں, جو کچھ ہماری کمی کمزوریاں ان کا اقرار کریں. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. ہم آہستہ آہستہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ رہے ہیں. تو انہوں نے اصل میں اقرار نہیں کیا, جھوٹ پہ کیا بولا؟ جھوٹ بولا. اور یسوع نے جب پکڑنا اس نے لوگ جھوٹ تھے, جھوٹ نہیں انج کیا, انہیں انج کیا, انج کیا, جھوٹ پہ جھوٹ وہ بولنے لگے. گیت گاتے نا, تو اس لیے انہوں نے بھی کیا بولا؟ جھوٹ بولا. کیا بولا جی؟ جھوٹ بولا. پھر جوانوں نے اٹھا کر اسے کیا کیا جی؟ کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا. کفن مطلب پہنا کے سارا کچھ کر کے تو دفنایا. اور کیا لکھا جی؟ قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے کیا ہوئی, جو بے خبر اندر آئی. کیا تھی؟ ان خبر نہیں تھی کہ اندر ہوا کیا ہے. بے خبر اندر آئی. پطرس نے اس سے کہا مجھے بتا, کیا تو نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا ہاں اتنے ہی. کیونکہ کہا ہے کہ ہر گناہ تمہارا معاف ہو سکتا ہے. اگر خدا کے ابن کے لکھا کلام میں خدا نے اگر ایسی کچھ کہہ دیے تو بھی معاف. یسوع واسطے نے کہہ دی, یسوع بھی ہے یہ ساری گل نہیں سننا چھڑو, وہ بھی معاف. لیکن اگر روح القدس کے لیے کہا جائے تو اس کی کوئی معافی نہیں. اس لیے روح القدس کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس وعدے پہ قائم رہا جائے. اس کا خوف کرتا کیا ہے؟ دنائی بخشتا ہے. خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. تو اس لیے وہ بھی اندر آ گئی. جاندنی کے اندر ہوا کہ پطرس نے اس سے کہا تو نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے, تم نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا. کیا کیا تم نے؟ ایکا کیا جی. دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے, دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں, اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے, اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے. وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی. وہ اسی دم اس کے قدموں پر کیا ہوئی تھی؟ گر پڑی, اور اس کا دم نکل گیا. اور ان کا حال دیکھ لیں. دونوں واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. جنہوں نے توبہ کی وہ بچ گیا, جس نے توبہ نہ کی وہ نہیں بچے. تو دونوں کیا لکھا ہے جی؟ شوہر کے پاس دفن. ان پھر نال شوہر ادھر کی کر کے دونوں اکٹھے کرو. یہ دونوں جھوٹے نے, ایک ہی جگہ رہنا دونوں ہیں. تو دونوں کو کیا کیا جی؟ ایک ہی جگہ دفن کر دیا. لکھا ہے اور آگے ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا. بڑا خوف چھا گیا. اس لیے خدا ہم سب کو برکت دے, کیونکہ ہم ایماندار ہیں, خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی دن, کلام بھی یہ کہتا ہے درجہ بدرجہ ہم نے خدا کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے. ضرور جو کچھ اس سے مانگے وہ کرتا ہے, وہ دیتا ہے اپنے مانگنے والوں کو. تو اس لیے مانگنے والوں کو کبھی بھی انہوں نے بے سہارا, بے یار و مددگار نہیں چھاڑتا. انہیں کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں, اتنا پیار کرتا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں. تو اس لیے روح القدس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ واقعہ جی وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا بھی ہے. روح القدس کیا کرتا ہے؟ دوسرا واقعہ وہ سنتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے مکاشفہ جو عارف کا مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت لکھا ہے, جس کے کان ہوں
वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचे। आमीन आमीन। 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 अब मुकाशवा की किताब में से ये बात हमने पढ़ी है कि रूह कुदस सुनता है, रूह कुदस सुनता है, बोलता है। क्या करता है जी? बोलता। सुनता है, बोलता है, बल्कि साथ काम करता है। तो लिखा है जिसके कान हो, जिसके कान हो। कान तो सारे नहीं ना, Yes. या किसी के नहीं है, नहीं सारे कान सबके। इसलिए वो कह रहे हैं जिसके कान हो वो सुने कि रूह कुदस कलीसियाओं से क्या क्या फरमाता है। इसका मतलब जिस्मानी कान तो ये है ही है, इनसे हम सुनते हैं बिल्कुल, लेकिन रूहानी तौर पर उसको समझना, दिल से तवज्जो करना एक्चुअली बात है। क्या करना है जी हमने? बल्कि रूहानी समझ। कौन सी समझ से समझना? रूहानी समझ। दिल की तवज्जो खुदा चाहता है। क्या खुदा चाहता है? दिल की तवज्जो और रूहानी समझ से चाहता है कि हम उसे समझें। ये इसलिए जिसके कान हो वो सुने। जो शख्स सच्चाई को सुनना चाहता है, जो शख्स सच्चाई को सुनना चाहता है, जो दिल से खुदा की बात को कबूल करने के लिए तैयार है, जो दिल से वो इसीलिए कह रहे जिसके कान हो वो सुने, मतलब दिल से जो सुनने के लिए तैयार है, जो अपने आप को तैयार करता है कि पाखरू मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं। आ मुझे ले, मुझे जोर दे, कुव्वत दे और मुझे यीशु की मानत बना दे। आमीन। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इसका मतलब जो दिल से खुदा की बात को कबूल करने के लिए तैयार है, जो जिद या गफलत में नहीं, जो जिद या गफलत में नहीं। अरे मिलता तो ना मिले ऐसी चलते रहना जिंदा जिद है। जिद नु की करना है और गफलत को क्या करना है? जिद नु छड़ना है और गफलत को छोड़ना है। आगे वाली बात, बल्कि सुनने और समझने वाले बनना है, बल्कि सुनने और समझने वाले बनना है। वही इस पैगाम को वाकई समझ पाएगा, जो दिल से सुनने की कोशिश, दिमाग से रूहानी तौर पर समझने की कोशिश करेगा कि खुदा पाक रूह मुझे समझा, वही इस बात को समझ पाएगा। नहीं आज भी लोगों की अकलें बंद हैं, कहने रूह कुदस की इतनी अहमियत नहीं, इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन दीन ही कंप्लीट नहीं होता, दीन ही कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि हमारा फिदिया जो मसीह ने दिया है, मैं इसको क्लियर करता चलूं, वो रूह का फिदिया हुआ है। वो किसका हुआ है जी? रूह का। अभी जिस्म का बाकी है, अभी जिस्म का बाकी है। एक जिस्म ना सानू का यीशु दे के गया है कि रूह कुदस की कुदरत से जिस्म पर गालिब आकर मसीह की बादशाही के लिए अपने आप को दिया। हालेलुया, ये बात, हालेलुया। जो गुनाह बागियतन से हमारे साथ था, वो मसीह ने सलीब पर अपने खून से धोकर पाक कर दिया है, साफ कर दिया है। अब जिस्म का फिदिया रूह कुदस से इसलिए मामूल होना जरूरी है कि रूह कुदस हमारी जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आएगा और हमें रोकेगा, फिर वो हम काम नहीं करेंगे जो खुदा को पसंद है, तो फिर हम उसकी बादशाही में जाएंगे। फायदा को कम करके यीशु ने जान देती हूँ तो दे देती, बिल्कुल ठीक देती, लेकिन जब मैं जिस्म का जब तक कुफारा नहीं होगा उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। जिस्म का कुफारा जलाली होना इसका बाकी है, जलाली होना इसका बाकी है। इसलिए ये बात मैंने कहा साथ साथ समझाता चलूं। यही हर कोई सुन तो सकता है, यानी हर कोई सुन तो सकता है, सुनता तो आसान रह सकता है, लेकिन हर कोई समझता नहीं, हर कोई समझता नहीं। लेकिन जिन्हें समझ आ जाती है ना, तो इसलिए खुदा ने हमें चुना है, बुलाया है कि हम सच्चाई को बयान करें। खुदा में यीशु मसीह एक जगह कलाम सुना रहे थे तो बोला बाहर तेरे भाई तेरी माँ आए हैं, उसने कहा मेरे बहन और भाई ये हैं जो खुदा का कलाम सुना। आमीन। इसलिए
मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि गालिबाना दिल से समझना बहुत जरूरी है। दिल से जब समझेंगे तो फिर हम रूह कुदस से मैं आग लगाने आया। मैं क्या करने आया हूँ? क्या ये अच्छा होता अगर आग लग चुकी होती। ये तो मतलब आग नहीं सी लगती। यही आग है, वो चाहता है हर घर में एक शख्स रूह कुदस से मामूल हो जाए, रूह कुदस से भर जाए, खुदा की मुनादी करने वाला हो और मसीह की खुशखबरी फैलाने वाला हो, ताकि गवाही हो जाए, ताकि क्या हो जाए। मैं यही चाहता हूँ कि एक कोई भी शख्स घर कर ले, बेटा है, बेटी है, बाप है, माँ है, जिम्मेदारी ले ले। एक शख्स घुटनों के बल होना सीख जाए, खुदा की इज्जत करना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता सारा घराना बदलना हमें बदलना शुरू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सारी कलीसिया, सारे लोग साढ़े बेदार हों। आमीन। हमें दुआ में ठहरना पड़ेगा, रोजे में ठहरना पड़ेगा, रूह कुदस की मामूली में रहना पड़ेगा, एक ख्याल, एक सोच होना पड़ेगा। तो जब ये करेंगे तो खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। चर्च बड़ा हो, जब वर्शिप हो रही हो तो पाक रूह की हजूरी इतनी कसरत से हो कि वो लोग शिफा पाना शुरू। आमीन आमीन। मैं तो नहीं आंदा कि खाली खातम कवे कि वो ही शिफा हो गए, नहीं, लोग जानने पादरी जुल्फकार साहब ने दुआ की थी शिफा हुई। अरे मेरी क्या हैसियत है? रूह कुदस ये काम करता है, पाक रूह ये काम करता है, शिफा देना उसका काम, रूहों को बदलना उसका काम, रहम करना उसका काम, फजल करना उसका काम, बदल कर अपने जलाल के लिए खर्च करना उसका काम। हमें तो ये खाली एक टूल है, हम उसने बनाया कि तुसी जाके 10 देना, बस तुम्हारी ड्यूटी है। जबरदस्ती गन पे रख के थोड़ी करना था, ये हमारा काम नहीं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो दिल से नहीं सुनते, जिसके कान हो वो सुने, जो दिल से नहीं सुनते। कान तो मैंने पहले कहा ना सबके हैं, मतलब कलाम ये बता रहा है कि जो दिल से नहीं सुनते। किससे सुनना है जी? दिल से। दिल के अंदर आवाज आनी चाहिए, दिल से कबूल के खुदावन मुझे तू चाहिए, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। दिल से। आगे वाली बात, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, जो क्या आएगा जी? गालिब आएगा। और गालिब के देते आना जी, अगली उस पे गालिब आना है, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आना है, ईमान में कायम रहना है। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, हालात अच्छे हो बुरे हो, वक्त साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, लेकिन हमने वफादार रहना है, मसीह का इनकार नहीं। हमें मसीह का इनकार नहीं करना है। देखा जो गालिब आएगा मैं उसे क्या करूंगा, उसको दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचे। गालिब का मतलब ईमान में कायम रहना। मुश्किलात आए, दुख आए, आजमाइशें आए, लोग मुखालफत करें, इवन के लोग मुखालफत करें। पतरस रसूल की मुखालफत नहीं थी, पौलुस रसूल की मुखालफत नहीं थी, मसीह की मुखालफत नहीं थी। अरे मुखालफत उसी की होती है जो कोई मसीह के लिए कुछ करना चाहता है, जो मसीह के लिए कुछ करना चाहता है। शैतान को तो डर लगता है, बस शैतान सिर्फ डरता उससे है कि ऐने कुछ करना है, तो जिन्हें नहीं करना होता बस ये काम है ना, कोई रिलैक्स छोड़ दो। जो ये करता है इसको बल्कि और प्रोटेक्शन देता है, बल्कि और वो उसकी हिफाजत करता है कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें करना ही कुछ नहीं थे, मेरे पास कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जिसको उससे डर होता है, यीशु को शैतान ने बड़ा तंग किया, क्योंकि उससे डर था कि इसने मुझे क्या करना है, सलीब पर कुचलना है, मेरी बादशाही के अंदर आकर, मेरे घर में आकर इसने सलीब पर मेरी सारी नाराजगियों को कुचल देना है। इसलिए उसको डर था कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, तो यीशु ने उसको कलाम से जवाब दिया। हमें पहला आदम तो की गल च आ गया, दूसरे आदम ने उसको कुचल दिया है। आमीन आमीन। तो इसलिए जो गालिब आए,
मुसीबतों, दुखों, परेशानियों में हालात हमारे मुखालिफ हों, लोग हमारे मुखालिफ हों, हमने ईमान पर खड़े रहना है और वक्त का इंतज़ार करना। आमीन। आमीन। तो जो ये करेगा उस पर दूसरी मौत का फिर कोई इख्तियार। अब दूसरी मौत क्या है? दूसरी मौत क्या है? समझने के बाद सवाल पैदा होता है, दूसरी मौत क्या है? दूसरी मौत खुदा से हमेशा के लिए जुदाई। दूसरी मौत ये है, अगर हम गालिब नहीं आएंगे, अगर हम शैतान के पैरोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर हम हमेशा खुदा से जुदाई, फिर हम हमेशा की आग में जलते रहेंगे। ये हमेशा की मौत है। ये कौन सी मौत है? दूसरी मौत। इसे ही दूसरी मौत कहा जाता है। तो इसलिए हमने वफादार रहना है, ईमान में कायम रहना है, और जब हम इस पर कायम रहेंगे तो फिर दूसरी मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं। इसलिए कहा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो इसलिए जो कायम रहेगा, ईमान पे चलता रहेगा, उस पर मौत का कोई इख्तियार नहीं रहेगा। इसलिए अगर हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं, जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचे। आमीन। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा खुदा जब लोगों की दुआओं को सुनता है, और मेरा ईमान है कि जब हम इस बात पर खड़े हैं और हम रूह कुदस की रहनुमाई में चल रहे हैं, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा सीनियर पास्टर है, हमारा पार्टनर है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता मसीह के कद के अंदाजा तक लेकर जाएगा। आमीन। और हमें प्योर करेगा, हमें और धोकर यीशु के लहू से साफ करेगा। फिर हम यीशु की इस मोहब्बत को जानेंगे और समझेंगे कि क्यों यीशु ने सलीब पर हमारे लिए जान दी। आमीन। आमीन।